Good afternoon, dear students. Yesterday I have given you these questions. How many of you have done better? कितने जने खत्म करे जल्दी बोलो. आया किसी को? Yes, sir. उस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? Particle moves in a straight line from A. The particle moves in a straight line from A to B. ये है और ये B है, isn't it? A to B, isn't it? What is asking for them? For the first half of the distance with a speed. First half of the distance मतलब यहाँ पर somewhat. First half of the distance is d by 2. Second half of the distance is also d by 2. It is moving with a velocity of v1 and this one is moving with a velocity of v2. Okay, and this one is a point C by deflection. So from A to C अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो time taken will be equal to how much? From here to here the time taken is t1 and from here to here the time taken is nothing but t2. So average speed is equals to how much for me? Average speed is equals to total distance by total time. Total distance divided by your total time. Total distance divided by total time. Total distance is how much better? D by 2 plus D by 2. This is nothing but T. Time is nothing but T1 plus of your T2. That is equals to distance D by, how do you write the time better? Time is equals to your distance, that is nothing but D by 2 by your velocity V1. This distance, so next one is D by 2 with a velocity of V2. And this one will become for me d by, this one is d by 2 times of v1 plus this one is d by 2 times of your v2. D if I take common, it will get cancelled right now. So this one is nothing but equal to how much better? This is 1 by 2 common हो गया, तो it is 1 by v1 plus 1 by v2. So average speed will be equal to 2 will go up. LCM if I am taking, so this will become 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. So the answer for this one is V2. Average speed is equals to 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Clear hai? Yes, sir. Correct. For the first 1/3 distance with a speed v1 and the next 2/3 distance with a speed v2, we need to calculate the average speed. So second question ka answer dekho right now. From your A to B, if I am going right now, for the first dot, how much distance right now? 1/3, yani d by 3 is moving with a velocity of your v1. Next distance is nothing but how much for me? 2d by 3. It is moving with a velocity of how much for me? v2, isn't it? And this one is say for example C. So यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम t1. Then from C to B the time taken is nothing but t2. Again same formula. Average speed is equals to this one is your total distance divided by total time. Total distance divided by your total time. तो जल्दी से कर दो, बताओ कितना आ रहा है बेसिकली. So this will become for me, this is equals to total distance is how much beta? D by 3 plus D by 3. तो कितना हो जाएगा? D by 3 plus this one is of your D by 3. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए time t1. How do you calculate the time? T1 is equals to distance d by 3 by your velocity v1. So here t2 will be equal to how much for me? 2d by 3 divided by velocity v2. And this will become for me d by 3 times of v1 plus this one is nothing but 2d by 3 times of your v2. So that will become for me d. In this one I can take here what common beta? D by, yes beta. सर न्यूमरेटर में आप d by 3 plus d by 3 लिया सर, 2d by 3. ये 2d by 3 है बेटा, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने. Okay, so that is t by 3 plus 2d by 3, that is equals to your how much for me d. And here what I can take common, d by 3 is a common, so it is 1 by v1 plus this will become for me how much beta? 2 by over v2. ठीक है ना? So this yes, sir. cancel, so this one is 3 divided by ये हो गया 1 by v1 plus 2 by over v2. So if I take an LCM for this one, so this will become here 3 right now. So if I am taking an LCM right now for this one, तो ये बना कितना मेरे पास यहाँ पर v1 into v2, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2 times of your v1 plus of your v2, यानी ये बन गया मेरे पास 3v1 v2 divided by 2v1 plus of your v2. So this is your average speed. Clear for everyone? 3v1 v2 divided by 2v1 plus of your v2. ठीक है? Yes sir. तो थर्ड वन देख लें अभी फिलहाल.
सो थर्ड क्वेश्चन को देख लो राइट नाउ. थर्ड क्वेश्चन क्या बोला? फॉर द फर्स्ट 1/4 ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v नॉट and the next half of the distance with the speed 2v naught. Then see what देखो इसने क्या बोला right now. For the first 1/4 the distance with the speed v naught and the next half of the distance with the speed 2v naught and the last 1/4 the distance with the speed 3v naught. Find the average speed. ठीक है ना? चलो सी हियर बेटा, इफ आई एम टेकिंग राइट नाउ फ्रॉम हियर, ये हो गया ये एंड ये हो गया बी. फर्स्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? ए टू सी डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड. हाउ मच डिस्टेंस? डी बाई 4. नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी सी से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना? हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट मींस डी बाई 2. लास्ट डी बाई 4th डिस्टेंस विद योर अनदर स्पीड. यानी फर्स्ट वन का स्पीड कितना था? यहाँ से यहाँ तक का स्पीड इज नथिंग बट v नॉट. And from here to here the speed is how much for me? 2v naught. And from here to here the speed is nothing but how much for me? 3v naught. That means to go from A to C is a T1, from C to D is nothing but T2, and from C to B is nothing but how much for me? T3. तो अब इसका हम लोग को निकालना क्या है basically right now? I need to calculate right now for the given condition time taken. So average speed is equals to how much? जल्दी से फॉर्मूला बताओ. Average speed is equals to total distance, that is by total time plus d by 2 plus d by 4 divided by time. T1 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया d by 4 times of your v naught plus ये हो गया d by 2 times of your 2v naught plus ये हो जाएगा d by 4 into your 3 times of v naught. समझ में आना ये? यस सर. तो ऊपर का d by 4 plus d by 4 कितना? d by 2. d by 2 plus कितना हो गया? d डिवाइडेड. कॉमन ले सकता हूँ मैं, देखो जल्दी से. d को बाहर निकालो, d by v naught को बाहर निकाल लो, तो ये कितना बना? 1/4 plus 1/4 plus 1 by कितना? 12 है ना? बराबर है बेटा? यस सर. ये डी चले गया, तो ये हो गया एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बताओ कोई? v नॉट क्या ऊपर जाएगा क्या? d by v नॉट बराबर ही है ना? बराबर है. d by 4v नॉट, d by 4v नॉट, d by 12v नॉट. तो ये बना कितना मेरे पास? ऊपर चले जाएगा v नॉट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ? एलसीएम कितना है इसका? 12. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ऊपर? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 plus 1 कितना? 3 plus 1 होता है ना? So Yes, 12v naught divided by 6 plus 1 7. ठीक है ना? So Yes, sir. average speed is equals to कितना है? 12 times of v naught divided by 7. Is it clear for everyone? Yes. यस सर. नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं जल्दी से. नेक्स्ट साइड हेडिंग लिख लो. एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन represented by a bar. Represented by a bar. How do you define an acceleration beta? Rate of Change of velocity. change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. So a bar is equals to, I can write this one as of your v2 bar minus of That's me. divided by your t2 minus of t1. ठीक है? So that is nothing but delta v bar divided by delta t. इसका यूनिट बता सकता है कोई? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, यानी ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना? yes sir तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखोगे? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट dv bar divided by your delta t. So this is your average acceleration. तो डायमेंशन फॉर्मूला बता सकता है कोई? डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब क्या? मास में, लेंथ में और टाइम में लिखना है. तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूँ मैं? डिस्टेंस बाय कितना? टाइम डिवाइडेड बाय टाइम.
तो कितना हो गया, डिस्टेंस इज यस, टाइम को नीचे आ गए तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया टी स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन कितना होगा एल टी पावर -2 हो गया। तो यहाँ पर भी मास नहीं है तो मास कितना हो गया 0, ये हो गया एल टी पावर -2, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ योर एक्सेलरेशन। आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो next one is in this one, instantaneous acceleration, I instantaneous is equals to, क्या बोला था मैं, instantaneous velocity कैसे लिखेंगे, very small change in Very velocity small. divided by your time, isn't it? So dv by dt, dv by dt, so that means I can say right now here, slope of your velocity versus time, velocity versus time gives me what, Acceleration. velocity versus time का slope क्या देगा, यानी dv by dt is nothing but what, tan theta, that is also equal to m, this is also represented as of your slope, ठीक है। So slope of your acceleration versus time कितना है बेटा, slope of your velocity versus time will always gives me what, acceleration, will always gives me what, acceleration। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ in terms of graph। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ with velocity versus time, as the time is increasing velocity will also increase, so the graph will become like this, isn't it? So per slope क्या हो रहा है, slope is increasing, slope increase हो रहा है तो acceleration क्या हो जाएगा, increase होगा, Yes, sir. Increase होता. increase की decrease, Increase. Increase. जैसे increase हो रहा है right now, velocity भी Increase होता. are increasing, ठीक है ना। So if I am giving the graph like this, this is your velocity versus time, if the graph is given like this, Constant. angle theta, Cons. slope is right now what am I for me, slope is equals to same everywhere, Constant. so acceleration क्या हो जाएगा, constant हो जाएगा, Constant. acceleration will become for me constant, क्योंकि if I take here point A, if I take here point B, if I need to draw a slope, draw a straight line, this is theta, draw a slope line, this is also theta, theta is not changing, so slope is same everywhere, so acceleration is also constant, acceleration is equals to constant, is that condition clear for everyone, Yes, sir. clear everyone? Yes, sir. चलो other forms of acceleration भी लिख लेते हैं, देखो जल्दी से नोट डाल दो। Acceleration A is equals to dv by dt था, that is equals to d by dt, in the place of velocity can I write as dx by, X by dt. तो ये बन गया कितना मेरे पास, d square x by over dt square, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना है तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x बाई ओवर dt, dt square. अगर x दिया हुआ है एक्सेलरेशन पूछा है तो क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन A is equals to dv by dt, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dx, dx और dx से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये देखो क्या हो रहा है, देखो इफ आई एम टेकिंग दिस वन, dx by dt क्या देगा, ये हो जाएगा Velocity. c by Velocity. dx into क्या हो जाएगा, dx by dt क्या देगा, वेलोसिटी। Velocity. Velocity. तो क्या मैं एक्सेलरेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, एक्सेलरेशन a bar is also equal to v into dv by dx, dx. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो भी हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो कितने फॉर्म्स है मेरे पास एक्सेलरेशन के, 3 फॉर्म्स है, a is equals to dv by dt लिख सकता हूँ, a is equals to d square x by dt square लिख सकता हूँ, और एक्सेलरेशन a is equals to वेलोसिटी into dv by dx। क्लियर है? Yes, sir. Okay. Sir. Yes, sir. And one more point, very important is here. A is equals to dv by dt. अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो क्या ऐसे निकाल सकता हूँ मैं, dv is equals to a into dt लिख सकता हूँ। Yes. Now Yes. Integrate. sides, integrating on both the sides,
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो देखो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ योर डीवी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर ए इंटू डी टी। लिमिट्स बन जाएंगे इसके राइट नाउ, मान के चलो आई एम मूविंग फ्रॉम योर वेलोसिटी, मान के चलो v1 है और ये हो गया v2 और ये टाइम हो गया t1 और ये टाइम हो गया t2। इंटीग्रल ऑफ dv कितना होगा बेटा, v होगा एंड दिस वन इज v1, दिस इज v2, ये कांस्टेंट है, बाहर निकालो। इंटीग्रल ऑफ योर dt, लिमिट्स कितना है मेरे पास, t1 टू योर t2, T1 T2 सो इंटीग्रल ऑफ dt कितना हो जाएगा, t होगा। v को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू a इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t2 माइनस ऑफ, T2 minus T1. लिख सकता हूं। Yes. Yes. Sir. Now see here, one more point लिख लो यहाँ पर ऐसी conditions में right now, here right now, change in del d v2 minus v1 is equals to how much, Varmi? Change in velocity, change in velocity, change in velocity is equals to what, integral of your a into dt। लिख सकता हूँ क्या मैं? Yes. Yes, sir. Velocity will give me what, ये लिखा है मैंने सीधा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। So change in velocity will give me what? Integral of your a into dt. A into dt is nothing but what? Area under acceleration versus time. Change in velocity. Change in velocity is equals to what? Area under what? Acceleration versus time. Okay? अगर आप कभी ग्राफ दे दिया between acceleration versus time, तो acceleration versus time, area under AT will give me what, velocity or change in velocity? Change in velocity. Change in velocity, velocity नहीं बोलना है, Yes, sir. याद रखना है वो पॉइंट को, ठीक है। the same way v is equals to dx by dt था बेटा अपने पास, है कि नहीं? Now I can write this one as of your dx is equals to v into dt, can I write? Yes, sir. So now again Yes. integrating on both the sides. Great. Integrating on both sides. Integrating on both sides. Integral of dx, limits are x1 to your x2. That is equals to integral of v into dt. Limits are t1 to your t2. Integral of dx क्या हो जाएगा, x. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो तो क्या बनेगा, x2 माइनस ऑफ x1, that is equals to integral of v into your dt. Limits are t1 to your t2. ठीक है? Yes. What I can say from this one, x2 minus x1 is nothing but what, displacement. Displacement है कि change in displacement है? खाली डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज नहीं होगा। हम लोग ने वेक्टर्स में पढ़ा था, वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख रहे हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, r2 माइनस r1 यानी x2 माइनस नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ v इनटू dt, लिमिट्स आर t1 टू t2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ will give me what, Displacement. Displacement. okay? Yes, sir. So I hope you are clear right now with these 2 points. These are very, very important points to remember. Area under AT versus acceleration versus time graph will give me change in velocity. Area under VT graph will give me what beta? Displacement. Displacement. Gives me displacement. कभी भी याद रखो बेसिकली बेटा, अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, एरिया अंडर कर्व निकालना है, area under your curve is equals to always integral of y into dx. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ y into dx आया मतलब क्या, that will give me always the area. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ ऐसा ड्रॉ करता है, ये हो जाएगा y और ये हो गया x, ये कुछ ग्राफ है मान के चलो ऐसा। एरिया निकालना मतलब क्या करना, इसमें से छोटा सा पार्ट ले लो कहीं पर भी ऐसे। area under y and x will always gives me what, area will always gives me area, यानी इसका एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और एंड यहाँ तक हो रहा है। ये मान के चलो x1 है, मान के चलो x2 है, ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स लेते जाओगे तो वो अपने को क्या देगा, एरिया अंडर योर y into your dx। ठीक है, Yes, sir. you already know how to draw the graphs, याद है कि भूल गए? Yes, sir. Yeah, Yeah. yes, sir. एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से। इफ
if S is equals to t cube minus 6t square, find velocity, find velocity at t is equals to 1 second, t is equals to 3 seconds, and t is equals to 2 seconds. Sorry, 2 and 3, anything you can take it out. जल्दी से बताओ, जल्दी से. S दे रखा है, S as a function of time दे रखा है. S is equals to what? Function of time, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. तो ये क्या निकलेगा मेरे पास? V instantaneous. V instantaneous is equals to how much for me? ds by over dt. ठीक है ना? So that is d. इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? t cube minus of 6 into t square divided by dt. डिफरेंशिएशन करना है. That is equals to d into this one is nothing but minus cube divided by dt minus this is d into 6 of your t square divided by your dt. डिफरेंशिएशन ऑफ t cube कितना हो जाएगा बेटा? 3 3t square स्क्वायर माइनस इसमें 6 बाहर निकाले. डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2t. 2t. 2t होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This one is nothing but a 3t square minus 6 2s are 12 into t. So this one is your velocity. Instantaneous velocity is how much you are getting? 3t square minus of your 12t. At t is equals to 1 second. At t is equals to 1 second. Velocity कितनी आ रही? 3 into 1 square minus 12 into your 1. यानी this is 3 minus 12. माने कितना? -9 minus 9 meter per meter per second. t is equals to 2 seconds. t is equals to 2 seconds. V is equals to 3 into ये हो गया 2 square minus minus 12 into this one is nothing but 2. This one is a 3. 2 square is nothing but 4 minus 12. 2 is Minus 12. 24. यानी this one is 12 minus 24. So that will be equal to how much for me? Minus 12 meters. Sorry, meter per second. Sorry, Meter per second. meter per second. Clear है? yes Then t is equals to 3 seconds. minus 9 meters per second. Minus 9 meters second. यानी v is equals to 3 into ये हो गया 3 square minus 12 into 3. ये हो गया 3. तो 3 square कितना है? 9 minus 12 3s are 36. 3 9s are 27 minus 36. 27 minus 36 is how much? Minus 9 meter per second. per second. निकला सभी को? Yes, sir. क्लियर है सभी का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. चलो very good. Find displacement. For given figure. For given figure from A to B. Okay. ये क्या दिख रहा है? Cube. Cube. One is nothing but a pure cube.
ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया मेरा z एक्सिस। ठीक है ना? तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट ए, और यहाँ पर हो गया ये पॉइंट बी यहाँ पर, और कोऑर्डिनेट्स दे रखा है प्रॉब्लम में। दिस वन इज गिवन एज ऑफ योर ये आई कैप, दिस वन इज योर ये जे कैप। ऐसा जा रहे हैं बेसिकली, देन लाइक दिस, देन आई एम गोइंग टू दिस डायरेक्शन लाइक दिस। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन फिगर फ्रॉम ए टू बी। तो क्या करना है? ए टू बी को अटैच करना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन ए एंड शॉर्टेस्ट पॉइंट डायगोनल, तो डायगोनल ऐसा, डायगोनल होगा। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना? तो बताओ जल्दी बी क्या बने? ए बी बार विल बी इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ए जे कैप, उसके बाद के कैप यहाँ पर है देखो, ये कितना हो जाएगा? ये भी ये होगा ना, ये हो जाएगा, ये माइनस के होगा, माइनस ऑपोजिट टू जेड एक्सिस है ना, अंदर यस को, सर, अंदर को है ना वो। यस सर। फॉर मी माइनस ऑफ योर ए इंटू योर के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच? 3 isn't it? यानी बॉडी डायगोनल कितना होगा क्यूब के लिए? बॉडी डायगोनल फॉर ये क्यूब एवरी टाइम कितना हो जाएगा? रूट 3। ये याद रखना है सभी लोग एज इट इज। यस सर, क्लियर है? यस पक्का? यस यस। Find displacement. Find displacement between A and B. ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगाओ जल्दी से। R1 R2 सेम है लेकिन डायरेक्शंस में डिफरेंट है बेटा, ठीक है ना? उसका डिस्प्लेसमेंट होना वेक्टर्स के हिसाब से सोचो। आई एम ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। देखो दिस वन इज वन वेक्टर, मान के चलो R1 बार, and this one is say for example one vector R2 bar. Both of them are same but directions are different. That is the reason I'm writing it as of your R1 and R2. ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर R1 and R2 are same but directions are different. But directions are different. ठीक है ना? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ कोई? लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ये ए था और ये बी था। लाइन जॉइनिंग ए टू बी, ये था डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी आ रहे ना, तो एरो मार्क कहां पर आएगी? नीचे आएगी। दैट इज नथिंग बट डी। तो क्या ट्रायंगल लॉ बन रहा है क्या? देखो यस isn't it? ट्रायंगल लॉ में टू वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, थर्ड वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो R1 बार प्लस B बार इज इक्वल्स टू, क्या R2 बार लिख सकता हूँ? यस सर। तो डी बार कितना बना? डी बार इज इक्वल्स टू R2 बार माइनस। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे टू वेक्टर्स का?
that is under root of your, this one will become for me r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 into your cos theta, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल थे that is nothing but how much for me, theta. A sir. ठीक है ना, R. माइनस है ना, subtraction of vectors. Yes. So mod of your b is equals to, क्या r1 r2 both same है ना, Yes sir, same है. 2A square. 2R square. minus 2r square into your cos theta. तो ये बन गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर into your cos theta. Cos. तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर 2r स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस ऑफ योर cos theta. मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया था आप लोग को 1 माइनस cos theta कितना होता है, 1 minus cos theta is equals to how much for me, 2 into square theta by 2. याद है, Yes sir. कुछ भी याद नहीं. mod of b Theta by 2. अंडर रूट ऑफ योर 2 into your r square into, ये हो गया मेरे पास 2 into sin square theta by your 2 बना. तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ योर 4 into your r square into your sin square theta by your 2. ठीक है, तो 4 को बाहर निकालो. सो मॉड ऑफ योर b विल बी इक्वल टू मच फॉर मी 2r into your sin of your theta by 2. ठीक है, Yes. तो क्या फॉर्मूला बना मेरे को मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट का, 2r into sin theta by 2. यूज दिस वन एज ऑफ योर शॉर्टकट व्हेनेवर यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब दोनों के बीच में एंगल कितनी थी, देखो a एंड b के बीच में एंगल कितनी है, 120 डिग्रीज. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू Root 3R. into your sin 120 divided by 2, यानी this one is 2r into sin 120 divided by 2 is how much for me, 60. sin 60 कितना हो जाएगा, 2r into sin 60 is root 3 by 2. 3 by 2. So this one will get cancelled. So what is the answer, root 3 into 3R. ठीक है ना. ये पूरा मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए करा हुआ Yes sir. पूरा, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हो. अगर r के जगह वेलोसिटी दिया तो भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना. कीप ए नोट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मैंने वेक्टर्स में भी लिखाया था. v रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, mod of your v is equals to, this will become for me 2v into sin theta by 2. ठीक है, Sin theta by 2. Yes sir. एक्सिलरेशंस, इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन अगर लिखना है तो हाउ डू यू राइट इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन बेटा, mod of your a is equals to 2a into your sin theta by 2. ठीक है, Yes. ये पूरा वेक्टर्स में करवाया था मैंने आप लोग को. Yes sir, याद. ठीक है ना, चलो जल्दी जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए व्हील ऑफ रेडियस, a wheel of radius capital R is rolling on the road. What will be the displacement? What will be the displacement of a point P in half rotation of wheel on road. जैसा टू व्हीलर का पहिया या फोर व्हीलर का पहिया मूव होता है ना, उसी तरह से निकालना है अपने को बेसिकली. ये देखो राइट नाउ यहाँ पर एक पहिया हो गया और ये हो गया अपना रोड. ठीक है, और ये हो गया ऑन अ रोड, ये पहिया अभी घूम रहा है. तो पॉइंट जो है ना मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये हो गया पॉइंट P
और इसका रेडियस जो है ना कैपिटल आर है, और ये कितना रोटेट करा, हाफ, हाफ रोटेट करके सामने गया, मतलब ये यहां पर कहीं पर गया। ठीक है, तो ये रोटेट करके पॉइंट पी यहां पर गया, ऑफ रोटेशन यानी ऊपर। ठीक है, इन दोनों का लाइन है, पी से चले गया यहां पर, मान के चलो पी डैश, मेरे को उसका डिस्प्लेसमेंट होना है, बता सकता है कोई? A wheel of radius r is rolling on a horizontal road. What will be the displacement of a point P in half rotation? Half rotation करके ही सामने गया, मतलब इन दोनों को अटैच करना है इस तरह से, लाइन जॉइनिंग P to P dash. Displacement is how much बेटा यहाँ पर? Displacement is equals to P to P dash. पता है ना बेटा? क्या हुआ यार? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना हो गया? यहाँ से अंदर आर था, यहाँ से अंदर आर था, ये तो पूरा कितना हो गया? 2r। R. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये आर्क लेंथ हो जाएगा। हाफ रोटेशन के लिए कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर, Yes, sir. इसने पूरा रोटेट करा तो 2 पाई आर, हाफ रोटेट करा तो पाई आर। सो टू p डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? अंडर रूट ऑफ योर पाई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरे पास 2r होल स्क्वायर, यानी ये बना मेरे पास अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू योर आर स्क्वायर। तो इसमें से क्या बाहर निकाल सकता हूं मैं? आर को बाहर निकाल सकता हूं, अंडर रूट ऑफ योर, सो दिस वन इज पाई स्क्वायर प्लस 4, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। Yes. अगर एंगल पूछा, मान के चलो दिस इज द एंगल मेड बाय दैट वन थीटा, तो कैसा निकालोगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। y वैल्यू मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस ना बेटा, परपेंडिकुलर कितना है? 2r, बेस कितना है? पाई, AR चलेगा, दिस वन इज द 2 पाई, यानी थीटा विल बी इक्वल टू योर tan इनवर्स ऑफ 2 बाई पाई। अच्छा वाला क्वेश्चन है नहीं? Yes, sir. दिमाग लगता है बहुत सारा। सेकेंड ईयर बच्चों के लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के अभी अभी आप लोग सुन रहे हो तो इट इज लिटिल बिट ऑफ गुड क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, next question. Think and give me the answer. If x is equals to 16t minus of 2t square beta is displacement for straight line, number 1, displacement after 2 and 6 seconds, first question. And number 2, distance traveled after, first one क्या था? displacement, next one is distance traveled after 2 and 6 seconds. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 99.99% अच्छे बच्चे भी इसमें गलती कर देते हैं बेसिकली। तो दिमाग लगाओ, पहले x वैल्यू दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट फॉर ए स्ट्रेट लाइन, वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 seconds and 6 seconds। so पहले डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट 2 seconds क्या हो जाएगा बेटा? E minus. हाँ, सेट योर 2 निकालता हूं पहले मैं, 16 into 2 minus 2 into 2 square, 16 2 जा
32 minus 8. 16 का कितना आते? 32. 30. How much? Minus 8, 24. I'm asking my kid. He is second class now. How much 16 twos are? 62. अच्छा है वो, very good. 32. आपको लिखा ना 16 वाले 36. हाँ तो बोले जब तक मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पर 32 sir, 32. 16 twos are 32 minus 2 4 2 twos are 4 4 twos are this one is 8 तो ये हो गया मेरे पास 24 meters. ठीक है ना? So now displacement at your 6 seconds will be equal to how much बेटा? 16 6 कितना आते? 24 minutes now. This one is 6 square. 16 6 96 minus this one is 2 6 6 36. Sir. तो कितना बना ये? This one is 96 minus 36 2 6 12. 72 sir. 72. So 96 minus 72 is how much? 24 meters. आई देखो यहाँ पर x is equals to 2 पे भी 24 है, x is equals to 6 पे भी 24 है. कुछ तो गड़बड़ होगा ना? Yes sir. तो ठीक है, चलो हम लोग इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं. वेलोसिटी है t सेकंड अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालोगे? dx by your dt. Yes sir. Yes, sir. देखो 2 सेकंड्स के पास आप 24 थे, ठीक है, Yes sir. और 6 सेकंड्स के पास भी आप 24 थे. Some problem is there. सम प्रॉब्लम मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सोचो. पहले इंक्रीज हुए फिर डिक्रीज हुए. वेलोसिटी नेगेटिव. वेलोसिटी है t सेकंड कितना बनता है बताओ बेटा? दिस इज d, x की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास प्रॉब्लम में? 16t माइनस दिस इज नथिंग बट 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt. तो ये कितना बनता है बताओ? वेलोसिटी एट सम t सेकंड्स कितना हो जाएगा? 16 को बाहर निकालो तो बनेगा 16 माइनस 2 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज नथिंग बट 2t, यानी दिस इज नथिंग बट 4t. ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम ना? Yes sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पर एक बार सोचो, बेसिकली अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास 2 सेकंड्स के पास भी 24 है और 6 सेकंड्स के पास भी 24 है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज नेगेटिव. जीरो होना ना, तो क्योंकि आप टाइम के साथ चल नहीं रहे हो. 0 होना. हाँ, Okay, sir. जीरो है तो दिस इज 16 माइनस 40, यानी कितने टाइम के पास वेलोसिटी जीरो हो गई बताओ? 4 seconds. 4 सेकंड्स. 4 सेकंड्स आपकी वेलोसिटी कितनी आई? 0. मतलब डिस्टेंस इन t is equals to 2 seconds कितना है मेरे पास? 24, 24. isn't it? Now distance in t is equals to 6 seconds कितना हो सकता है? Negative. 2. Negative. तो 2 रहा था क्या? Distance cannot be less. It should be more. t is equals to 2 seconds के पास 24 था, तो t is equals to 4 seconds. t is equals to 4 seconds. आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता था बताओ? जहां पर आपकी वेलोसिटी 0 बन गई, कहां पर बनी? 4 सेकंड्स में. Yes sir. यानी कितना डिस्टेंस कवर करे बताओ आप? 16 into 4 minus 2 into 4 square कितना आ रहा बताओ? 64 minus Minus 32. 32. So 32 only answer. 32 आता. 32 meters, यानी डिस्टेंस 32 meters ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी बनी? 0. 0. isn't it? 0 बनी. यानी देखो पहले मैंने स्टार्ट किया t is equals to 0 के पास, ठीक है ना, गया 4 सेकंड्स तक गया. 4 सेकंड्स तक मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? t is equals to 4 सेकंड्स में मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया 32 meters. At t is equals to 4 seconds, what is my velocity? Velocity 0 हो गई, मतलब 1 सेकंड के लिए गया, रुक
के फिर मैं वापस आ रहा हूँ, रुक के वापस कहाँ पर आ रहा हूँ, फिर 24 मीटर के पास आ रहा हूँ, तो कितना मुझे वापस चलना चाहिए 24 पे वापस आने के लिए? 32 minus 24. 2 माइनस 24, मतलब कितना डिस्टेंस 24. मैंने? 8 मीटर्स, 8 8 meters. meters. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. डिस्टेंस कितना हुआ? 8 meters. डिस्टेंस 30 डिस्टेंस कितना हुआ और 64. कितना हुआ? मैं फिर Distance is Distance 64. 64, sir. कितना हुआ Distance 64. ऐसा? 32 Eh, plus 32 8 plus 8, sir. हाँ 32 Yes, plus 8. अच्छा, 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 अच्छा. कितना हुआ? Displacement is 24. 40 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 24. 24। क्यों? 24 meters. इनिशियल What is पॉइंट distance? आपने गए सामने गए एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर आप वापस 24 मीटर के पास आए। Sir. Yes, sir. 24 मीटर कहां पर थे आप? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स के पास आप 24 पे थे, और t इज इक्वल 6 सेकेंड्स के पास भी आप 24 पे है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यानी आप सामने घूम के वापस आ रहे हो, क्योंकि टाइम तो रुका नहीं है ना, तो टाइम के हिसाब से आप तो चल रहे हो। बेसिकली एक पॉइंट आया जहां पर आपने टर्न किया। आप जनरली आप साइकिल पे जा रहे हो या टू व्हीलर पे जा रहे हो, कहीं पर मोड़ आ गया यू टर्न, तो क्या आप अपनी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ऑल कम कर लोगे? Yes, sir. Come. पे जा रहे थे समझो, कहीं शॉर्प एड्ज आ गया, शॉर्प टर्न आ गया, तो क्या आप 40 पे ही टर्न लोगे? No, sir. No. नहीं, तो आप क्या करोगे? आप स्पीड डिक्रीज करोगे, Yes, sir. Yes, sir. ऑलमोस्ट ऑल जीरो हो जाती है। आप देखो कभी स्पीडोमीटर जीरो आके फिर सडनली चले जाता है ऊपर, Yes, sir. isn't it? यानी दैट इंस्टेंट राइट नाउ, यानी इस पॉइंट को हम लोग पलटी पॉइंट बोलते हैं। इस पलटी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो रही है? जीरो, Zero. sir. Yes, sir. isn't it? तो पलटी मार के आप फिर वापस 24 मीटर्स पे आए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे? 8 मीटर्स। तो 8 meters. डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 32 meters. अच्छे बच्चे, आप किसी को भी दो 99.99% ये क्वेश्चन वो लोग गलती करेंगे। अच्छे से टीचर को भी दोगे ना तो भी वो गलती करेगा। इतना ज्यादा डिटेल सोचने का दिमाग ही नहीं होगा उन लोगों को बेसिकली। तो आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोचना है, 1 से 2 बार सोचो कि क्या क्या दे रखा है और उसके हिसाब से करने की कोशिश करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और एक बार इस क्वेश्चन को लो, फिर ट्राई टू डू इट आउट ऑन योर ओन वंस अगेन कि हम लोग ने इसको क्या समझा था। ठीक है ना? Yes, sir. yes sir. सर स्क्रीनशॉट ले लेते एक बार। Yes, sir. वैसे भी रिकॉर्डिंग है ना बेटा, मिल जाएगी आराम। रिकॉर्डिंग हो रही ना? हो रही सर. पूरी सर। अगर रिकॉर्ड नहीं करा तो रहती मेरी शामत। चलो ये तो हो गया। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीके बेसिक कंडीशंस में, और अगर कोई पोजीशन दिया तो भी निकालने का मेथड आ गया आप लोग को। सभी को क्लियर है ना बेटा? सभी को इधर पॉइंट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो टाइम है ना, 5 मिनट कर लेते हैं बेटा जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, motion in a straight line, motion in a straight line under constant acceleration, under constant acceleration। क्या कांस्टेंट है अपने पास? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना बेटा? मान के चलो एक गाड़ी स्टार्ट हुई यहां से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हो आप s, इजंट इट? और यहां पर जब गए तो आपकी वेलोसिटी यहां पर थी v, कितने टाइम पे? t इज इक्वल टू t सेकेंड्स पे। आप ये b है मान के चलो, और ये पॉइंट ये है, इजंट इट? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसीडरिंग ए पार्टिकल which has been moving in a straight line under constant acceleration, ये, और इसका एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास? ये, ठीक है ना? एट t इज इक्वल 0 के पास वेलोसिटी कितनी है? u। t इज इक्वल t सेकंड के पास वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, सो व्हाट इज u बेटा? u इज योर v इनिशियल minus u by t. Initial. u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? Final velocity. ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम ऑफ योर जर्नी, यानी कितनी देर आपने टाइम ट्रैवल किया 0 से लेके t तक,
और यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, डिस्टेंस sir. डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। डिस्प्लेसमेंट इन ए टाइम कितना है? टी। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो बेटा। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू योर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है ना? तो बताओ जल्दी से क्या आ रहा? V एक्सेलरेशन minus U. टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये इनटू टी क्या बनेगा? v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू हाउ मच बना? u प्लस ऑफ योर 80, 80. isn't it? This is the first equation when the body is moving with a constant acceleration. Velocity is equals to how much for me? v is equal to u plus U plus 80. अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है बेटा, एवरेज वेलोसिटी मैथ्स में आप लोग एवरेज कैसे निकालोगे? दो वैल्यूज अगर है तो v By 2. जैसे लिखते हैं यहाँ पर दो क्या है? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. ये दो जब भी यूज होते हैं व्हेन द बॉडी इज हैविंग व्हाट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड मूविंग। Constant. ठीक है ना? द नेक्स्ट Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट निकालो जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या देखोगे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है ना? सो s इज इक्वल्स टू व्हाट फॉर मी? v बार इनटू t। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सिंपलीफाई कर लो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर है कहला रहे? हाँ Scalar. हाँ Vector, sir. Vector होता है. So वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना है? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इनटू योर टाइम t। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अपने पास क्या v की वैल्यू मालूम है? एस v U plus फॉर मी u प्लस U plus 80. from equation 1, from equation 1. So therefore this will become for me s bar is equals to u plus v is equals to u plus of your 80 divided by 2 into t। लिख सकता हूँ क्या ऐसा? Yes, तो ये sir. बन गया कितना? u into t plus Plus ये half कितना 80 बन जाएगा मेरे पास? हाफ 80 square. ये into t स्क्वायर बना। Yes, sir. Yes, sir. 2u बेटा नीचे से 2u चले गया है ना, इसलिए तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने ut डाल लिया। तो यहाँ पर कितना बना? s is equals to your ut plus half of a into your t square। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। When the body is moving with a constant acceleration, displacement कैसे लिखोगे? s bar is equals to this much, यानी r bar minus of your r naught bar is equals to u bar into t plus half into a bar into your t square। ऐसे लिख सकता हूँ? yes, sir. यानी r बार कितना बन जाएगा? r नॉट बार प्लस ऑफ योर u बार इंटू t प्लस हाफ इंटू a बार इंटू योर t स्क्वायर। क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा? डिस्प्लेसमेंट खाली आप लोग को क्या लिख रहे हो? फाइनल माइनस इनिशियल। r इज योर फाइनल पोजीशन बेटा, r इज योर फाइनल पोजीशन एंड r नॉट इज योर इनिशियल पोजीशन। Yes, sir. ठीक है ना? आज आवाज नहीं आ रही बच्चों की किसी की भी? एक दो बच्चों की सिवा छोड़ के। क्या बात है? खाना नहीं खाए क्या अभी? चलो तो अपने पास कितने इक्वेशंस आ गए देखो? व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वन इक्वेशन इज v is equals to u plus 80, second one is s is equals to vt, then third equation is s is equals to ut plus of your half of your a into t square। और fourth point देख लो बेसिकली, from v is equals to u plus 80, if we square on both sides, यानी v square is equals to u plus of your 80 का whole square बेटा। Whole square. मेरे पास a plus b whole square, so this one is u square plus this one is 2u into your 80 plus of your a square into t square। लिख सकता हूँ ऐसा? Sir. Yes, sir. Isn't it? So can I write this one as right now something like this? This is your u square plus, if I take 2a common, this can be written as of your ut plus half of your a into t square। लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir.
2 को मैंने कॉमन लिया मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 हो गया बाहर, ये तो कॉमन है मेरे पास, एक बाहर ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या सेम इक्वेशन आता नहीं आता, क्या देख लो ये Yes. 2 into 80, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 चले गया, तो फिर से a into t स्क्वायर आ गया, निकला। Yes. तो स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a into ut Yes. plus square is nothing but what, s bar, तो ये Yes, bar. another equation right now, v square is equals to u square plus 2a into your s bar। क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, Yes. ये तो छोटा छोटा ही है, अभी कल हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप योर टुडे सेक्शन इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Okay, sir. ठीक है ना? तो हम लोग को ग्राफ के लिए अपने को कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे ओनली टू डू द ग्राफ प्रॉब्लम्स इन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो अभी हम लोग डिराइव करें ना, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए भी अपने को 2 से 3 दिन लग जाएंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस वगैरह करके प्रैक्टिस करके परफेक्ट में जब तक। उसके बाद हम लोग मोशन इन 2D जाएंगे, यानी और एक मान के चलो विल बी डूइंग अनदर 10 डेज दिस चैप्टर मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन। 10 से ज्यादा दिन हो सकते हैं, तो मिनिमम 10 लगा के चलो, मैक्सिमम 14 डेज या 15 डेज लग जाएंगे। ठीक है? Okay, sir. कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। Okay, sir. Thank you, sir. बाय Thank you, sir. बाय बेटा। Thank you, sir. Yes, sir.